So we'll start. Some facts first about India's performance and winners at Tokyo Olympics 2020 or 21? 20. Tokyo Olympic 20. It was being postponed. Yeah, it was being postponed due to the COVID-19. And COVID-19 disease is also known as Coronavirus. disease, COVID-19. No coronavirus. Coronavirus is a agent. Disease is only COVID-19. And actual disease name is SARS-CoV-2. Right? So India has shown a spectacular performance at the Summer Olympics 2020 in Tokyo. First point, this year's performance has been India's personal best. ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. Personal best performance. This year's list is no doubt a longer one than previous years, and it is a proof that as the government is investing in the players, the medal tally is rising for the nation. Right? तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये आपके लिए एक ऑफ़र, जो भी शौर्य भारत डिफेंस एग्ज़ाम लर्निंग ऐप ले रहे हैं, अभी कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसको 40%. तो मैसेज है, इंफॉर्मेटिव है, एंड दिस मैसेज वैलिड अप टिल 31st of August. जैसे अर्जुन के लिए है कृष्णा, वैसे के वैसे लिए हर विद्यार्थी के लिए है शौर्य भारत. So download this app from Play Store and share with your friends. Move further, and some winners from India at Tokyo Olympics. As you know the name, आप सभी को पता ही होगा. Yes, sir. नीरज चोपड़ा, javelin throw. मीराबाई चानू, weightlifting. Then badminton. Lavlina Borgoin, boxing. Men's hockey team total. रवि दहिया रेसलिंग, बजरंग पूनिया रेसलिंग. क्या क्या मेडल लिए इन्होंने? नीरज चोपड़ा गोल्ड. लेट्स सी फर्स्ट. सिल्वर मीराबाई चानू. पीवी संधू ब्रॉन्ज. मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज. रवि दहिया सिल्वर. लवलीना को कौन सा मिला, ब्रॉन्ज या सिल्वर? ब्रॉन्ज ही मिला है. सो दिस इज द मेडल टैली, 1 gold, 2 silver and rest bronze. ये थोड़ा सा ध्यान रखना. ब्रॉन्ज कांसा है, तांबा नहीं. तांबा क्या होता है? पीतल. साइंस से हो, केमिस्ट्री पढ़ी है. ब्रास. कॉपर होता है तांबा. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट प्लीज फोकस. Which tennis player won the Paris Master title? रॉजर फेडरर. Paris Master title. जोकोविच. Paris Master title, वो French Open है, that is very different. The right answer is Daniel Medvedev. Paris Master titles. This is a small tournament, not a big kind of tournament like a Grand Slam in the tennis. Grand Slam 4 ही होते हैं. Australian Open, French Open, Wimbledon and American Open. Next question. Which sports person has clinched the ITTF Women's World Cup title? Table tennis.
The right answer is Shen Ming. And from India, मनिका बत्रा. ये इंडियन प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर, ध्यान रखना नाम, लेकिन विनर थी ये शेन मिंग. ITTF, that means International Table Tennis Federation tournament. Which sports organization had released rules to protect the maternity rights of its female players? Again, current affairs का बहुत अच्छा क्वेश्चन जाएगा ये. Which sports organization, first organization है सारे, sports organization has released rules to protect maternity rights of its female players? The right answer is FIFA World Cup. FIFA Women's. So maternity rights, to protect maternity rights of its female players, FIFA organized this time first, right? Next question. Which organization conducted the voting for conducting Asian Games in 2030 and 2034 among Saudi Arabia and Qatar? Asian Games Federation, International Sports Federation, Olympic Council of Asia or International Olympic Committee, IOC. Which organization conducted the voting for conducting Asian Games in 2030 and 2034 among Saudi Arabia and Qatar? किस गेम्स की बात कर रहे हैं? एशियन गेम्स. तो आंसर यहाँ क्या एशियन गेम्स फेडरेशन हो सकता है? नहीं. राइट आंसर है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया. कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? शारजा. नहीं अरसा ने बताया था. अरे सऊदी अरेबिया. एंड कैपिटल ऑफ कतर? कैपिटल ऑफ कतर इज इन दोहा. And capital of Saudi Arabia? करेंसी रियाल. और शारजा इसकी सिटी नहीं है. शारजा इसकी सिटी नहीं है. शारजा यूएई में आता है. दुबई कोई कंट्री नहीं है. दुबई सिटी है पर कंट्री यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. क्वेश्चन पूछा गया था ये एमिरेट्स कितने एमिरेट्स से बना हुआ है? 7 एमिरेट्स हैं टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian player has been appointed as the chief selector of the national men's cricket team? क्रिकेट. कितना आसान क्वेश्चन है क्रिकेट. क्रिकेट तो सब देखते हैं हम. नहीं देखते. सही बात. एग्जैक्टली मैं भी नहीं देखता. 78 पे ऑल आउट हो गई आज. फर्स्ट इनिंग इंग्लैंड के सामने टेस्ट मैच. इंडिया. राइट आंसर इज चेतन शर्मा.
सेलेक्टर पूछा है उन्होंने, राइट, ध्यान देना है वर्ड पे, हमारा ध्यान चला जाता है कोच पे, हम कोच की तरफ देखते रहते हैं बार बार। क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, चीफ सेलेक्टर, सेलेक्टर में ही कौन सा, एज द चीफ सेलेक्टर। तो क्वेश्चन पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो ध्यान इधर उधर ही जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग बैडमिंटन प्लेयर फेल टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स, फेल्ड टू, यस, बैडमिंटन प्लेयर्स, सर 228 सही था सर 50 वाले 228 सही है, 248 का था। हाँ तो 228 कर दीजिएगा उसमें, वही मैंने कहा वो कन्फ्यूजन चल रहा था, इसलिए मैंने आते ही पूछा था आपको वो, पर वो एथलीट दिखाई जा रहा था बार बार। 228 है, राइट है ना, ए आंसर राइट होगा, वो कन्फ्यूजन ही था मेरा कंटिन्यूस। विच अमंग द फॉलोइंग बैडमिंटन प्लेयर फेल टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स, इज इट चिराग शेट्टी, इज इट बी साई प्रणीत, नो वे, पीवी सिंधु तो नहीं है, कंफर्म हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल, ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इसलिए नहीं गई। जो मूवी आ चुकी है इस पर, सानिया परिणीति चोपड़ा द्वारा, उसके वो इतना बड़ा मसला है। साइना नेहवाल। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सोनम मलिक और साक्षी मलिक। सर गीता फोगाट नहीं है क्या? जो चार ऑप्शन है वो ये हैं, राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक नहीं जीता है, साक्षी मलिक, ओलंपिक मेडल ब्रॉन्ज। क्वेश्चन ओलंपिक पे पूछ रहा है इसलिए गीता नहीं होगा, वर्ल्ड रेसलर नहीं है या कोई छोटे मोटे और कोई टूर्नामेंट्स नहीं है, सो साक्षी मलिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर्स डिड नॉट प्ले एट द टोक्यो ओलंपिक्स, मुझे तो पता नहीं, आप बताओ। अंकिता रैना, सुमित नागपाल, सानिया मिर्जा या रोहन बोपन्ना। सर वी विल गो फॉर रोहन सर ऑडियंस पोल। द राइट आंसर इज अगेन तुक्का इज राइट। रोहन बोपन्ना। लास्ट टाइम में प्रॉब्लम्स जो हो गई थी इसलिए उसने अपना नाम वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the sole representative of India in the women's artistic event at Tokyo Olympics? ओपनिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया का क्या काम वहाँ पे? तो जापान वाले करेंगे ना। द वर्ड आर्टिस्टिक इवेंट किस गेम में होता है, किस स्पोर्ट्स में होता है, उससे फोकस करना, आपको उससे आंसर निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, द राइट आंसर इज प्रणति नायक। जिम्नास्टिक में यही थी, बाकी मानव पटेल स्विमिंग में थी और ये रेसिंग में थी 4x4 रिले रेसिंग, प्रियंका गोस्वामी नहीं थी। सो प्रणति नायक, जिसमें वो सिंक्रोनस आर्टिस्टिक इवेंट बनाया जाता है जिम्नास्टिक में, उसको कहा जाता है आर्टिस्टिक इवेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? यहाँ ओनली ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स पूछा गया है। 32, 40, 26, 15। 32। राइट आंसर, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में बहुत कम ही होते हैं, आई थिंक 15। दौड़ने वाले बहुत कम होते हैं। 4x4 में 4 जाते हैं। बाकी जो ये हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन इवेंट होते हैं उनमें मुश्किल से 2 या 3 पूरा परफॉर्म करना पड़ता है। तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा 26। और उसमें से विनर कौन रहा? बस ओनली 1 टोटल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टार इंडियन track and field athlete missed out on qualification in the Tokyo Olympics 2020? ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं वहां पर पेपर में। पहली चीज तो वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में नहीं थी। द राइट आंसर इज कमलप्रीत कौर तो नहीं है, और सीमा पूनिया भी नहीं है। अब इन दोनों में से हिमा दास। हिमा दास बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर दूती चंद। सो द करेक्ट आंसर, ये वहां का पूछ रहा है जहां हीट होती है, क्वालिफाइंग हीट होती है, तब वहां पे क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी दूती चंद। और यहाँ सर बहुत बड़ा क्लेम वगैरह था, लेकिन ठीक है इनकी मेहनत तो थी ऑफ कोर्स, बट वहां जाके फ्लॉप हो गए थे। कंडीशंस अलग हो जाती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दूती चंद इज द राइट आंसर। ढिंग एक्सप्रेस किसे बोला जाता है? ढिंग एक्सप्रेस। ये वर्ड था। ये किसे कहा जाता है? क्वेश्चन अलग है, मैं जो पूछ रहा हूं पहले उसका जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा हिमा दास। प्लीज साइलेंट। द राइट आंसर इज हिमा दास। ढिंग इनके विलेज का नाम है, इसलिए इनको कहा गया था ढिंग एक्सप्रेस। हाँ, अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान। विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मेड इट्स डेब्यू एट ओलंपिक्स? ये हम कर चुके हैं वैसे। Yes, sir. नो, कराटे। आपने इक्वेस्ट्रियन का भी कुछ बताया था उस टाइम। एक कराटे ही था सर। इक्वेस्ट्रियन तो मैंने बोला था कि इक्वेस्ट्रियन, किसी ने पूछा था कि इक्वेस्ट्रियन क्या होता है, तो इवेंट बताया था कि जो हॉर्सेज हैं वो उन पे ड्रेसाज, टेंट पैगिंग, जंप करना, ये सब आता है, उसको इक्वेस्ट्रियन कहा जाता है। मैंने बोला था सर कराटे नहीं होते ओलंपिक्स में, तो आपने बोला नहीं होते थे कराटे। हाँ, तो ये हम कर चुके हैं दोनों क्वेश्चन। लास्ट वाला कराटा और इसके बाद वाला क्वेश्चन है कराटे के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following sports returned to the Olympics this year after being cut out previously? कर चुके हैं, देखा कितना याद रहता है। जूडो नहीं सर, गोल्फ, बेसबॉल, जूडो हो गया सर, गोल्फ, The right answer is मैंने बेसबॉल बोला।
सब बेसबॉल। बेसबॉल। ये भी आपने कराया था सर। दोनों कर चुके हैं हम क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ करंट अफेयर्स है, टोक्यो ओलंपिक नहीं है, मिक्स है यहाँ पर। हु इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इस पे। Who is in line to be the first women Chief Justice of India in 6 years? Justice Hima Kohli, Justice B.V. Nagaratna, Justice Bela M. Trivedi, or none of the above? पहला। The right answer is, देखिए ये तो उन्हें होगा नहीं, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा। जस्टिस हिमा कोहली नहीं होगा और नन ऑफ द अबव नहीं होगा। ये दोनों तो हटा दिए मैंने। अब आपके पास 50-50 रह गया ए और सी में से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है, जिसका 6 ईयर का टर्म होगा। लाइन में है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगे वाले कॉम्पिटिशन में। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना। Yes, who is the supreme leader of the Taliban since 2016? मुल्ला अब्दुल गनी बारदर, मौलवी हबीबुल्लाह अखुनज़ादा, मुल्ला मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी। तो यहाँ पर राइट आंसर है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, अखुनज़ादा। ये भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। अभी जो चेंजेस आए हैं, तालिबानाइजेशन हो गया है अफगानिस्तान का टोटली। तो अखुनज़ादा जो है वो 2016 से लीडर बना हुआ है, और इनका जो मेन लीडर था वो था पहले मोहम्मद मुल्ला उमर। अब अलग अलग प्रेसिडेंट के, अब इनमें क्या होता है देखते हैं कौन लीडरशिप लेता है फाइनली। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर उसका पूरा नाम क्या है? मौलवी हबीबुल्लाह, उसका नाम क्या है? मौलवी हैबतुल्लाह अखुनज़ादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ismail Sabri Yaqub has been appointed as the new Prime Minister of which nation? नाइजीरिया, क्योंकि ये मुस्लिम नेम लग रहा है। तो फिर ये दो कौन से बुरे हैं? जब वो दो आ गए तो इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, मलेशिया और नाइजीरिया। तो यहाँ पर मैं पहले तो 50-50 कर दूं। तो ये तो मेरे वाला काटो, पता है। ये नहीं होगा, एक और काटो, और एक और में ये नहीं होगा। मलेशिया सर। मलेशिया। So Ismail Sabri Yaqub has been appointed as the new Prime Minister of Malaysia. Capital? कंट्री है वो तो। मलेशिया की कैपिटल? कुआलालंपुर। क्या आता है ना? KU कैसे भी स्पेलिंग है, नेम की स्पेलिंग, इट्स नॉट एसेंशियल। कुआलालंपुर। Radhakishan Damani has entered world's 100 richest people list. He is the owner of which Indian retail company? Future Retail, D-Mart, Future Retail, Shoppers Stop और Reliance Retail? तो रिलायंस रिटेल है, रिलायंस नहीं पूछा है। ओके। रिटेल तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं। तो यहाँ पर मैं दो हटाऊं। एक तो शॉपर्स स्टॉप नहीं है और एक फ्यूचर रिटेल नहीं है।
डीमार्ट डीमार्ट किससे रिलेटेड है ये कंपनी? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल शॉपिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग। डीमार्ट तो मॉल्स है, नहीं वो वी मार्ट है। वो वी मार्ट है। सर डीमार्ट भी है जयपुर और हाँ, वो ऐसे नाम दे दिया होगा कोई। डीमार्ट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होगा शायद से। डीमार्ट है डिजिटल शेयर मार्केट, सर शेयर तो नहीं बोल रहा लेकिन हो सकता है ये अगर उसने अपने आउटलेट भी लगा दिए हों। सर जयपुर तो बहुत है, डीमार्ट है ना, आउटलेट लगा दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नाम ध्यान रखना हमको, राधा किशन दामनी। Who was known as the Lion of Panjshir? इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, आगे आने वाले वर्षों में तालिबान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। Who was known as the Lion of Panjshir? अहमद शाह मसूद, अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह और हामिद करजई। पहले तो पंजशेर है क्या वो बताइए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, यही पता चल जाएगा मुझे। व्हाट इज पंजशेर? नहीं पता। पंजशेर क्या है? अभी जो तालिबान ने अफगानिस्तान को कवर कर लिया है, लेकिन एक पार्ट है जो वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। दैट एरिया इज नोन एज पंजशेर, 5 शेर ऐसे नाम रखा हुआ है। पूरी एक वैली है और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो सब अपोज कर रहे हैं तालिबान का और तालिबान वालों को मार रहे हैं। तो पंजशेर वर्सेस तालिबान अभी चल रहा है, कंटिन्यूस स्ट्रगल। और इनके जो लाइन है वह है अहमद शाह मसूद। पंजशेर टोपोग्राफिकली देखें तो भी बड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता है इनके तालिबान के पहुंचने का। जैसे हम कहते हैं ना, किले में एंटर करना बहुत खतरनाक है। कहाँ के? रणथंबोर के फोर्ट में, क्योंकि फोर्ट इतना ऐसा बना हुआ है कि इजीली कोई नहीं एंटर हो सकता है। तो सेम पंजशेर की वैली की वही टोपोग्राफी है ज्योग्राफिकली अगर देखें तो भी। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन, लाइन ऑफ पंजशेर, अहमद शाह मसूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, US Congress will posthumously award gold medal to which Indian freedom fighter? Posthumously, मरणोपरांत। US Congress। कौन रशिया गए थे? कनाडा, रशिया, कोई ना कोई बोस गया था सब बाहर, रशिया कनाडा शायद से। नहीं गया था। चले देखते हैं, इनमें से कट कर देता हूं 2 को। देखिए, एक तो ये कट हो जाएगा आपके, जवाहरलाल और गांधी जी भी कट हो जाएंगे, गांधी जी। और दूसरे कट हो रहे हैं ये। सर सुभाष चंद्र बोस ये सब तो अफ्रीका गए थे बोस ही। गांधी जी अफ्रीका गए थे क्या? राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी। क्या बोला वो रास्ते से लास्ट तो इस तो कुछ यही तो ये US कांग्रेस विल करेंगी सम्मानित। अब कब करेंगी? गोल्ड मेडल से। सो महात्मा गांधी राइट आंसर। states chief minister has announced smart health cards for 3.5 crore people.
ये इकोनॉमी का विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड स्मार्ट हेल्थ कार्ड फॉर 3.5 करोड़ पीपल? ऑप्शंस ओडिशा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन हटो सर। मेरा पहला ऑप्शंस बताइए, पहले तो गेस तो कीजिए। नहीं कर यस रहा सर, झारखंड, बिहार, ओडिशा। चलिए 2 कट कर देता हूं मैं। ओडिशा। एक तो आपका वेस्ट बंगाल गया और एक झारखंड गया। उड़ीसा। सर उड़ीसा। उड़ीसा। बिहार और ओडिशा। उड़ीसा। 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 लालू जी तो है ही नहीं, जेल में बैठे हैं शायद उनकी। बिहार, बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, ओडिया। कौन है चीफ मिनिस्टर? ये बोला ये तो शुद्ध रूप से तक्का तुक्का था। बताओ। नवीन पटनायक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city's जिला पंचायत has passed a proposal to rename the city as हरिगढ़? अलीगढ़। अलीगढ़, ये सही है। सही है, तो भी मसला है। अलीगढ़। नहीं, वो मीम चलते ना इंस्टाग्राम पे। So the right answer is अलीगढ़। The Reserve Bank of India has partially lifted digital bank from which private bank? डिजिटल बैंक फॉर which MX. The Reserve Bank of India has partially lifted its digital ban 50-50. from which private bank? MX. 50-50. ये HDFC तो बना, HDFC और ICICI. Axis, MX, sorry, HDFC, Axis, MX और ICICI? MX. 50-50. 50-50। पहले कुछ बताओ तो सही। सर MX. एक्सेस। ये MX चलेगा तो मुझे लग रहा है। तो ये तो आपका कट हो गया एंड सेकंड आपका हो गया ये कट। MX सर, MX है सर। HDFC तो बना। राइट आंसर हो जाएगा बोले। HDFC। बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा घट गया। बैन कर दी भैया जी। मेरा अकाउंट टेस्ट करा। RBI has partially lifted its digital ban from HDFC Bank. एक्चुअली इस बैंक ने क्या किया है, नथिंग, इसने जितने भी बड़े बड़े जायंट्स हैं, जो चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में हैं, उनसे जॉइंट वेंचर बना लिया अपना। कैशबैक जितना भी आता है वो सब ये बैंक दे रहा है अभी। तो बहुत ज़्यादा कैशबैक देने लगा तो RBI ने कहा कि आप प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वो ऑनलाइन आता है 27% ऑफ, 30% ऑफ इस HDFC से करने। हाँ, तो ये फिर इसलिए इसको बैन किया गया था डिजिटली। और भी कई रीजन थे, एक रीज़न नहीं है। किया है अभी या फिर अभी तो हटा दिया बैन। सिर्फ ऑनलाइन से हटा है ना। नेक्स्ट, who has declared himself as the caretaker president of Afghanistan? अमरुल्ला। केयरटेकर प्रेसिडेंट, दैट मीन्स कार्यवाहक राष्ट्रपति, खुद को बता दिया उसने। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या, हामिद करजई, सरवर दानिश, अमरुल्ला और अब्दुल्ला। अमरुल्ला शाले। तो हामिद करजई तो कट हो जाता है बहुत पहले से ही, ये तो है ही नहीं। सी सर, सी। अब जो कंपटीशन है इन तीनों के बीच में, अरे सर एक और काटो ना सर, 50-50, 70-30 ये तीनों 75% में आंसर देना होगा आपको। सर दानिश, तीनों इंपॉर्टेंट है। सर सी या फिर दानिश चाहिए तो सॉरी क्या नाम है? सरवार दानिश। सरवर दानिश, अमरुल्ला सालेह और अब्दुल्ला। सर अमरुल्ला साले और दानिश में सर तीनों में से एक ही है। तो इसमें से ये कट कर दिया मैंने। चलिए हाँ, अमरुल्ला। सर अमरुल्ला 95% है और 5% है दानिश।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें अमरुल्ला सालेह है। इन्होंने अभी खुद को, क्योंकि ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे एट द टाइम ऑफ अशरफ गनी जो छोड़ के भाग गया देश, तो इन्होंने कहा कि अब मैं हूँ। तो तालिबान ने कहा कि बाहर आओ, कहाँ से बोल रहे हो? यहाँ से बोल रहे हैं। अभी कुछ पता नहीं है। ये केयर टेकर प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, क्या कहा है? खुद ने खुद को ही बोला। हाँ, वो कौन था इनका? पीएम कौन था जो भाग गया अभी? अशरफ गनी पीएम नहीं हो, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which nation has formally approved three-child policy to prevent जापान सर, जापान। जापान है चाइना में से। जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना। सर चाइना। चलिए इसमें से हटा दूं दो। हाँ सर हटाओ सर। तो एक तो ये हट गया आपका साउथ कोरिया और एक जापान हट गया। चाइना सर चाइना चाइना। नहीं सर, चाइना में तो फिर रोकने की से चाइना की तो चल रही है। नॉर्थ कोरिया हो सकता है। सर नॉर्थ कोरिया चाइना। में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो नॉर्थ कोरिया हो सकता चाइना में कर रहा है नॉर्थ approve। कोरिया। हमेशा किसमें? नॉर्थ कोरिया। चाइना में पहले तो वन चाइल्ड पॉलिसी। हाँ तो इसलिए उन्होंने फिलहाल की चेंज पॉलिसी। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये भी कट हो जाएगा। राइट आंसर चाइना। इन्होंने बिल्कुल विथ आंसर, करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल सही, विथ स्टेटमेंट। चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज की है क्योंकि वहाँ पर डेमोग्राफिक क्राइसिस आ रहा है बहुत भयंकर वाला, इसलिए 3 चाइल्ड पॉलिसी को अलाउ कर दिया है। किसी ज़माने में उसने 1 चाइल्ड नॉर्म्स जो था वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, इसलिए उसकी डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इतनी है, इतनी गिर चुकी है। 0.5, 3 तो आप सोचो ही मत, 0.5% पे आ चुकी है। लोग ऐसे वहाँ पे सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो डेमोग्राफिक क्राइसिस है तो चाइना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hakainde Hichilema has won the presidential election of which nation? कौन से नेशन में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन कर गए? कॉन्गो, ज़ाम्बिया, नाइजीरिया और आर्मीनिया। तो यहाँ राइट आंसर है 50-50 तो नहीं चलेगा। ज़ाम्बिया, अफ्रीकन कंट्री। So these are various questions. Okay, fine. So from tomorrow onwards, we again move towards polity, regular session, and that is very important for further examination. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.